Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you all are fit and fine. Students, today we are going to start our English grammar topic pronouns. Students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रोनाउंस स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नाउन. I think you already know about noun. Noun is the name of a person, place or thing. नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होता है. एंड व्हाट इज प्रोनाउन? लेट्स सी. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रीमा इज़ ए गुड गर्ल. रीमा यहाँ पर है नाउन. एंड रीमा लिव्स इन दिल्ली. यहाँ पर नाउन ही रीमा है. और बार बार नाउन्स की रिपीटिशन न हो इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर रीमा और रीमा दो बार यूज़ हुआ है. वी यूज़ शी फॉर रीमा, सो शी इज़ प्रोनाउन हियर. नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, रीमा इज़ ए गुड गर्ल. She lives in Delhi. Next है types of pronouns. Pronouns can be of different types. Some of them are personal, possessive, reflexive, emphatic, demonstrative, interrogative, and relative. These are the different parts of pronouns. First है personal pronouns. What is personal pronouns? Personal pronouns are used instead of nouns for person or things. Personal pronouns nouns की जगह पर यूज़ होते हैं किसके लिए? persons के लिए और things के लिए. For example, my uncle lives in the USA. मेरे अंकल कहाँ रहते हैं? USA में. So my uncle is personal pronoun. He lives in the USA. He stands for personal pronoun. It is a tall building. It stands for personal pronoun. And they are wealthy and famous. And they also is an example of personal pronoun. Next है, the personal pronouns are I, we, you, he, she, it, they, me, him, her, them and us. स्टूडेंट्स, ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस में होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन से होते हैं? आई, मी, वी. सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर. फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर को रेफ़र करता है. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हियर मैं, मेरा, मैं, आई स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, यानी कि सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो. यू आर ए ग्रेसफुल डांसर. नेक्स्ट है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे. द पर्सन और प्लेस or things spoken about is third person. Next is the personal pronoun it. The pronoun it is used. It कहाँ पर यूज़ होता है? For things without life, for animals and for babies. ऐसी थिंग्स के लिए जिनमें लाइफ नहीं है, एनिमल्स के लिए, बेबीज़ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड ब्लू कैप. I lost it. It stands for blue cap. The cat jumped down. It landed on a dustbin. The baby was thirsty. I gave it a glass of water. Next है
As an empty subject, we often use it as the subject in a sentence referring to the time, weather, temperature or distance. This is called an empty subject. The subject does not carry any real information. It is 10 o'clock. It is hot. It boils at 40 degrees Celsius. It is 80 kilometers from here to Pune. Third है to refer to something that cannot be identified. I think it is made out of rubber. Next है possessive pronoun. Possessive pronoun shows possession, जो अधिकार को दिखाते हैं. We use them to show the relationship between people and object. लोगों और people और objects के बीच में, things के बीच में रिलेशन बताने के लिए पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है. इज दिस पेन योर्स? योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन. विच दिस इज कैथरीन, शी इज ए कजन ऑफ माइन. माइन है आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस. हु जैकेट इज दिस? दिस इज his. This is possessive pronouns. Is this Seema's book? Yes, it is hers. हाँ, ये सीमा की बुक है. Hers stand for possessive pronouns. Next है look at this table of personal pronouns and their corresponding possessive pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस की टेबल है. आई, माइन, यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट. नो पोजेसिव फॉर्म. इट की कोई पोजेसिव फॉर्म नहीं होती. वी, आर्स, दे, देयर. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट्स द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का कार्य है, अफेक्ट्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है. The subject and the object refer to the same person or thing. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम पर्सन और थिंग को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हर्ट देमसेल्व्स, या देमसेल्व्स किनके लिए आया है? दे के लिए आया है. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ. ही स्टैंड्स फॉर, हिमसेल्फ स्टैंड्स फॉर ही. Himself stands for he. Next है emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used to emphasize the subject of the sentence. Sentence के subject को emphasize करने के लिए emphatic pronouns का use किया जाता है कि मेरा, उसका. I myself did it. Tia herself made the vase. Herself stands for Tia. Myself stands for I. Demonstrative pronouns. A demonstrative pronouns points to the noun to which it refers. This, that, these, those are demonstrative pronouns. For example, this is my book, that is yours, those are new cars, these are old cars. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये होते हैं जो दिस, दैट, दीज, दोज को किसी भी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर्स, दोज आर न्यू कार्स, दीज आर ओल्ड कार्स. वन मेन थिंग इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस.
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वे सेंटेंस के एंड में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे देखो। एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वे सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस का कि एम्फेटिक प्रोनाउंस तो सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ किए जाते हैं एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, विच ऑफ दीज इज एन फॉल्ट, हुज आर दीज फाइल्स, होम डू यू वांट टू सी, व्हाट हैज़ हैपन टू यू, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो WH फैमिली के होते हैं जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? द वर्ड व्हाट विच यूज कैन बी यूज्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एज वेल एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में तो सब्जेक्ट बाद में यूज़ होता है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले W का यूज़ होना इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल विच डेस्क, whose book, बुक से पहले क्या आया है? प्रोनाउन हुआ आया है, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और जहाँ पर वर्ब आई है वो हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर वर्ब आई है तो ये हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एंड वर्ब नहीं आई है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो वो हुआ हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। Relative pronoun refer to a noun mentioned before it. रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉज के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए या रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेफर्स टू ए नाउन बिफोर मेंशन बिफोर इट, जो पहले से ही नाउन दिया होता है उसको रेफ़र करता है कि ये सेंटेंस किसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग। किसको? सब्जेक्ट को ही पहली ही लाइन को इंडिकेट करता है कि दैट इज़ द बॉय, वो वही लड़का है। हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, जिसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया था। हु किसके लिए यूज़ हुआ है? दैट बॉय के लिए यूज़ हुआ है। तो ये रिलेशन दिखा रहा है दोनों के बीच में कि दैट इज़ द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, जिसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया था। शी इज़ द गर्ल whom the principal scolded yesterday। किसके बारे में? whom किसके लिए आया है? she के लिए आया है। whom stands for she। this is the bag which I bought, which stands for this bag। so relative pronouns is a relation between two things, the subject and the object। सब्जेक्ट को बता रहा है कि पहले किसके बारे में बताया गया है, पहले सब्जेक्ट की बात हो रही है, और हु किसके लिए आया है वो सब्जेक्ट है, एंड दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जब किसी पर्सन और थिंग की आइडेंटिटी नहीं पता होती कि वो कौन है, क्या चीज़ है। somebody rescued him, nobody helped him, somebody, nobody, anybody, anyone। these are the example of indefinite pronouns। so students, ये था pronouns का चैप्टर। pronouns, what is pronoun, how many types of pronouns and their definitions and their examples। I hope ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।